کہ کراچی والوں کو بڑی سہولت دینے کی تیاریاں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کریم آباد انڈر پاس مارچ تک مکمل کرنے کا حکم۔ مراد علی شاہ کی الیکٹرک و فوری یوٹیلیٹیز کی منتقلی کی ہدایت۔ کہا عوامی منصوبے میں معیار اور رفتار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ٹیکنیکل ٹیم کا کریم آباد انڈر پاس کا دورہ، منصوبے کی پیش رفت اور معیار کا جائزہ لیا۔ محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سیل نے 3,81,07,47,000 روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے کریم آباد انڈر پاس کا معائنہ کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو رپورٹ پیش کر دی، جس کے مطابق منصوبے میں مجموعی طور پر 85% پیش رفت ہو چکی۔ منصوبہ اب اپریل 2026 تک مکمل ہونے کی توقع ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ کریم آباد انڈر پاس ضلع وسطی میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے، لہٰذا مارچ تک مکمل کیا جائے۔ اہلیان کراچی کو لال قلعہ پارک سمیت مزید 4 تفریحی مقامات کا تحفہ۔ 5.25 ایکڑ پر محیط پارکس میں خواتین کے لیے واکنگ ٹریکس، بچوں کے لیے پلے ایریاز موجود۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے خوشخبری سنا دی۔ سانحہ گل پلازہ پر اظہار رنج و غم، بولے ایسے حکمت عملی بنائیں گے کہ ایسے سانحات نہ ہوں، جتنی دکانیں تھیں اتنی بنا کر دیں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ شہر میں تفریحی سہولیات کی جانب ایک اور قدم۔ جیالے میئر نے شہر میں 5 پارکس کا افتتاح کر بعد لال قلعہ پارک سمیت دیگر پارکوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرتضی وہاب بولے اس پارک کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا، جہاں جاگنگ ٹریک، بچوں کے جھولے، گرین ایریاز، فائبر کاسٹ، RCC سٹنگ ایریاز اور لکڑی کی جدید بینچز نصب کی گئی ہیں۔ کراچی کے پارکس اور گرین ایریاز کو جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ لال قلعہ پارک اور اس کے ساتھ 4 مزید پارکس، یعنی کہ ٹوٹل 5 پارکس ہم نے عزیز آباد کے علاقے میں آج سنگ بنیاد نہیں رکھا ہے۔ ان پارکس کو مکمل کر کے پبلک کے لیے ہم نے کھول دیا ہے۔ تقریباً کوئی 4.25 ایکڑ پر محیط یہ پارکس ہیں، جس کے اندر پلے ایریا موجود ہے، گرین زون اس کے اندر موجود ہے، ورزش کے لیے یا واک کے لیے، جاگنگ کے لیے اس کے اندر واکنگ ٹریک وغیرہ موجود ہے۔ میئر کراچی کا کہنا تھا کہ سال 2026 ترقی کا سال ہے، جس کا براہ راست فائدہ ایک عام کراچی والے کو ہوگا۔ یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے، ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا سال ہے۔ اس شہر کراچی میں انشاءاللہ آپ کو بڑی شاہراہیں بھی بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس شہر کراچی کے اندر آپ کو جو اندرونی گلیاں ہیں وہ بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گی، پارکس، پلے گراؤنڈز بھی بنتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کا فائدہ ایک عام کراچی والے کو ہوگا۔ میئر کراچی نے سانحہ گل پلازہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ حکومتی نمائندے اور کراچی کے عوام لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ سانحہ سے متعلق جامع انکوائری رپورٹ کابینہ کمیٹی کے سامنے پیش کر دی گئی تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچاؤ کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جا سکے۔ کیمرامین امجد علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 20۔ میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کی جانب تاریخی قدم اٹھا لیا۔ میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن میں SAP سیپ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کی جانب تاریخی قدم اٹھا لیا۔ واٹر کارپوریشن کو جدید IT نظام سے ہم آہنگ کرنے کی جانب اہم پیش رفت، سیپ سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ واٹر کارپوریشن میں ڈیجیٹل اصلاحات کا عملی آغاز۔ ترجمان واٹر کارپوریشن نے کہا کہ SAP سسٹم کے نفاذ سے واٹر کارپوریشن کے تمام امور میں شفافیت آئے گی۔ جدید سسٹم سے واٹر کارپوریشن کے ریکارڈ کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن میں نمایاں تیزی آئے گی۔ اس موقع پر میئر کراچی نے کہا کہ SAP سسٹم کے ذریعے بلنگ، ریکوری اور اخراجات کی مؤثر مانیٹرنگ ممکن ہو سکے گی۔ سانحہ گل پلازہ، کم عمر بچوں کو دکان میں چھوڑنا سنگین غفلت قرار۔ وزیر اعلیٰ کو پیش کردہ 21 صفحات کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ غیر محفوظ الیکٹرک نظام بھی آگ کی شدت بڑھنے کی وجہ بنی۔ گل پلازہ میں آگ فلاور اینڈ گفٹ شاپ سے لگی۔ سانحہ کی انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ماچس جلانے سے مصنوعی پھولوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ دکان مالک نعمت اللہ دکان 11 سال کے بچے کے حوالے کر کے چلا گیا۔ آتشگیر مواد کے باعث آگ نے تیزی سے پوری عمارت کو لپیٹ میں لے لیا۔ پڑوسی دکان کے ورکرز نے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چوکیدار نے آگ کے 5 منٹ بعد بجلی بند کی۔ بجلی بند ہونے سے پلازہ میں موجود 2500 افراد میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ رپورٹ کے مطابق غیر محفوظ الیکٹرک نظام بھی آگ کی شدت بڑھنے کی وجہ بنا۔ انکوائری رپورٹ کے بعد وزیر اعلیٰ نے سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال کے 400 ملازمین گزشتہ 8 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین کو صرف 2 ماہ کی تنخواہ مل سکی۔ انہوں نے OPD کا کاؤنٹر بند کرا کر CEO کے آفس اور میٹنگ روم کا گھیراؤ کیا۔ ملازمین نے احتجاج کے دوران نعرے بازی بھی کی۔ کہا کہ جب تک مکمل تنخواہ ادا نہیں کی جائے گی
एहतजाज जारी रखा जाएगा। तफसीलात इब्राहिम रिन की रिपोर्ट में। अदम अदायगी का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ा। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में हालात कशीदा। अस्पताल के 400 मुलाजमीन को 8 में से सिर्फ 2 माह की तनख्वाह देने और मुलाजमीन को अस्पताल पहुँचने की हिदायत इंतजामिया को महंगी पड़ गई। मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। CEO ऑफिस और मीटिंग रूम का घेराव किया, खूब नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि इंतजामिया ने हमें सिर्फ 2 माह की तनख्वाह अदा की है, जो कि नाइंसाफी है। जब तक मुकम्मल तनख्वाह अदा नहीं की जाएगी अस्पताल नहीं खोलने देंगे और एहतजाज भी करते रहेंगे। एहतजाज करने की वजह यह है कि 9 माह की तनख्वाहें हैं और उसमें से 2 माह की दी गई है और कहा जा रहा है कि आप अपने काम पे ड्यूटी पे आ जाए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लें। इस तरह की इन हालात में कौन ड्यूटी ज्वाइन कर सकता है और कैसे कर सकते हैं? लाखों रुपए के ड्यूज़ हमने उधार लेके लिया हुआ है, सर पे उधार है, बच्चों की फ़ीस है, किराए का मकान है, इतने हज़ारों लाखों रुपए के जो ड्यूज़ है उधार है, वो हम इस तनख्वाह में वही अदा नहीं कर सकते तो बाकी कैसे चलेगा? बोले डॉक्टर हो या इतने महंगे के दौर में जो है ना गुजारा नहीं होता। तकरीबन 9 महीने से जो है सैलरी नहीं दी गई है ना, तो ज़ाहिर है इशूज़ हैं। अभी सिर्फ 2 महीने की उन्होंने सैलरी दी है, बाकी सिर्फ अभी आसरे में रखा है, ठीक है ना। तो इस हालात में काम करना बहुत मुश्किल है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। और CO साहब ने हमें कहा है कि ये बस 1 महीने के अंदर आप हॉस्पिटल चलाएं, इंशाल्लाह ताला उसके बाद सैलरी आ जाएगी। मगर अब हमारे जो 13 इनके पास जो अभी जो बजट आया है वो 9 महीने के अंदर आया है, इतनी मुश्किल से है। तो जो बकाया बजट है वो क्या आ सकेगा इसी महीनों में? तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए घर चलाना। एहतजाज के दौरान OPD को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला बच्चों को दीगर अस्पतालों में रेफर करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से इंतजामिया का कहना था कि हुकूमत की जानिब से 70 से 80% बजट मिला है और इसी में से 2 माह की तनख्वाहें अदा की हैं। उम्मीद है जल्द मजीद रुकी हुई तनख्वाहें भी अदा कर देंगे ताकि तमाम शोबेजात मुकम्मल खुल सकें। कैमरामैन अहमद के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबात पूरे न होने पर एक बार फिर मुल्क की हड़ताल की धमकी दे दी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने कहा है कि पंजाब में ड्राइवर्स को अभी तक मसाइल का सामना है। HTV लाइसेंस जारी नहीं हो रहे। हुकूमत ने मुतालबात फौरी तस्लीम न किए तो कारोबार बंद कर दिया जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। वादे पूरे करें या हड़ताल के लिए तैयार रहें, ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर सड़कों पर आने की धमकी दे दी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर अलायंस मलिक शहजाद ऐवान ने हुकूमत को 1 माह की डेडलाइन दे दी। कहा कि पंजाब में HTV लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे। 10 मुतालबात में से सिर्फ 4 पर अमल दरामद शुरू हुआ है। अगर बाकी मुतालबात फौरी तस्लीम न किए गए तो दोबारा मुल्कगीर हड़ताल होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर ने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर ने जो है उसकी अप्रूवल कैबिनेट से देनी है। तो अभी तक जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो मसला था वो अभी बरकरार है, वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल अभी तक बरकरार हैं। सदर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुज्जर ने दावा किया कि वफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग ने लोकल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को पार्किंग की जगह फराहम करने की मंजूरी दे दी है। अभी हमने आज ही शहजाद साहब से इस चीज़ का मुतालबा किया है कि आप जल्द से जल्द कमिश्नर साहब से या सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है जो हमारे यहाँ सिंध के, इनसे रब्ता करके जो लोकल के मसाइल थे इनके ऊपर इनके फौरी इस पे अमल कराने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ने वादे पूरे न किए तो मुल्कगीर हड़ताल पर मजबूर होंगे, क्योंकि ड्राइवर्स के मसाइल और लाइसेंस का बहरान अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिना तब्दीली की तजवीज़ सामने आ गई है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। माहिरीन कहते हैं कि आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती कीमतें इसके पीछे एक बड़ा सबब है। अशरफ खान की रिपोर्ट। पेट्रोल मसनूआत के सार्फिन तैयार हो जाएं, कीमतों में रद्द बदल की तजवीज़ सामने आ गई। पेट्रोल की कीमत कम मगर डीजल और दीगर ईंधन महंगा करने की मशवरा आ गया। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 36 पैसे कमी की तजवीज़ दी गई है और मंजूरी के बाद कीमत 253 रुपए 17 पैसे से कम होकर 252 रुपए 81 पैसे हो जाएगी। इसी तरह 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए 47 पैसे इजाफा तजवीज़ किया गया है, जो मंजूरी के बाद 257 रुपए 8 पैसे से बढ़कर 266 रुपए 55 पैसे हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर मिट्टी का तेल 3 रुपए 69 पैसे महंगा और लाइट डीजल 6 रुपए 95 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ये नई कीमतें 1 फरवरी 2026 से नाफिजुल अमल होंगी, जबकि माहिरीन इसकी वजह आलमी मार्केट में खाम तेल की बढ़ती कीमतों को करार दे रहे हैं। अशरफ खान, सिटी 20। साइट एरिया था एयरपोर्ट सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 भी खुले मैन हॉल से बच ना सका। सरशाह सुलेमान रोड मस्जिद सेंटर के करीब बेशतर मैन हॉल के ढक्कन गायब है, जिसके नतीजे में किसी भी वक्त कोई सानहा जन्म ले सकता है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
कराची में खुले मैनहोल खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगे। साइड इंडस्ट्रियल एरिया से एयरपोर्ट जाने वाला सिग्नल फ्री कॉरिडोर 1 जो तेज़ रफ्तार ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, अब खुले मैनहोल्स की वजह से शहरियों के लिए खतरनाक बन चुका है। सर शाह सुलेमान रोड, मशरिक सेंटर और नेशनल स्टेडियम के अतराफ कई मैनहोल्स के ढक्कन गायब हैं, जबकि यही रास्ता अस्पतालों, तालीमी इदारों और रिहायशी आबादियों को जोड़ता है। रात के वक्त अंधेरे में ये खुले मैनहोल्स हादसात को दावत दे रहे हैं। सर यकीनन यही है कि जब आते जाते हैं तो परेशानी बनती है, ठीक है। कभी बाइक वगैरह या कोई ऐसा जा रहे अचानक मेन होलों में फंस जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो चुका है इत्तफाकन कि गलियों से गुजर रहे होते हैं, कोई मेन होल ऐसा होता है कि हल्का सा क्रैक होता है तो यकीनन गाड़ी का टायर, मेरे साथ कल हुआ है अभी, यानी कि ये वाक़या। ये पूरा कराची खुला हुआ है, खड्डे हुए हुए हैं, सब जगह ये हुए हैं, ये नाला, ये गटर खुला हुआ है, अभी मैं गिर जाता। सब जगह यही है, खड्डे हैं, नाले खुले हुए हैं, गटर के ढकने खुले हुए हैं, सब जगह। नॉर्थ कराची, सरजानी, रूपी मोड़, शारे पे सब। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इदारों को शिकायत की गई, मगर ताहाल मैनहोल्स के ढक्कन नस्ब नहीं किए गए, जिससे किसी बड़े सानहे का खदशा बढ़ता जा रहा है। भाई देखें, पहले ही कितना बड़ा हादसा हो चुका है आपके सामने, 6 के करीब जगह जगह ये हादसे शहर में हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इक़दाम करे कि ये चीज़ें बंद करे, और जो इन चीज़ों की वजह से मुल्क का नुकसान के साथ साथ आम पब्लिक का बहुत नुकसान हो जाता है। बाइक चलाते चलाते कोई सामने मेन होल हो जाए, जब प्रॉब्लम होती है लोगों को, और इसमें बच्चे गिर जाते हैं। भाई अल्लाह के वास्ते इसको ज़रा देखें, इस चीज़ को ना ज़रा प्रेफर करें। ये बहुत ज़्यादा, ये रोड के बीच में ही है, तो जान का भी ख़तरा है, माल का भी ख़तरा है। तो इस पर आप लोग कुछ आगे कुछ कार्रवाई करेंगे कि इसकी ये मसला हल हो। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर खुले मैनहोल्स को बंद करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। लियाकताबाद ब्लॉक 5 में 600 से ज़ायद घराने आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मकीन कहते हैं कि गुज़श्ता 1 माह से यही सूरत हाल है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पानी जैसी बुनियादी सहूलियत से महरूम लियाकताबाद के बासियों के रोजमर्रा अजियत बन गई। ब्लॉक 5 में 600 से जायद घराने आलूदा पानी पीने पर मजबूर, सेहत आमा शदीद खतरे में। इलाके में सप्लाई किया जाने वाला पानी बदबूदार, मिट्टी आलूद और इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं। मुकामी आबादी के मुताबिक 1 माह से नलकों से आने वाला पानी पीने तो दरकनार, घरेलू इस्तेमाल के भी काबिल नहीं रहा, जिसके बाइस मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही है। हाँ, कंप्लेन की है वाटर बोर्ड में, और ये मामला तकरीबन आज 1 महीना हो गया है ना। 1 महीने से गटर का पानी आ रहा है मुसलसल, और टैंकों में जब हम लोग पानी भर लेते हैं गटर का पानी, तो ज़ाहिर बात है टैंक का जो साफ़ पानी होता है वो भी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, उल्टी मोशन लग रहे हैं बच्चों को। काफ़ी 1 महीना तो हो गया पक्का के गटर का पानी ही आ रहा है। बस पानी की बहुत परेशानी हो रही है। ये गैस भी ना गैस है ना पानी, बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं। अब कहाँ जाए? मकीनों ने शिकवा किया कि वाटर कारपोरेशन को कई बार दरख्वास्तें दी, शिकायत दर्ज करवाई, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। सर, एक तो पहली बात यह है कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम कोई अफसर या कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं, ठीक है। इतना गंदा पानी आ रहा है, हम पानी को देखें, अपने घर में चूल्हा कटका करें या हम बाजार से पानी खरीदें, इतना महंगा कॉस्टली पानी आता है। हमारे बच्चों के पेट ख़राब हो रहे हैं, उल्टी मोशन उनको लगे हुए हैं, कभी हम बासी जा रहे हैं, कभी प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। हमारा तो बिल्कुल ही हमारा जीना मरना दुबर हो गया है। लियाकताबाद है, ये शहर के बीचों बीच है ये इलाका, ये सेंट्रल का इलाका है। यहाँ वोट लेने आते हैं, हमारे से हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, हम यहाँ पर वोट देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमने 10 जगह एप्लीकेशन दी है वाटर बोर्ड को, हम किधर जाएं? इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है लियाकताबाद ब्लॉक 5 में फौरी तौर पर साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आसमान से बातें करती सोने की कीमतें, सराफा बाजारों में सन्नाटा छा गया। शादी की खुशियां मांद पड़ गईं। शॉपिंग पर आई खातून ने शिकवा किया कि मेरी अम्मी ने मुझे मेरी शादी पर सोना दिया था, मगर मैं आज अपनी बेटी को शादी पर सोना देने से कासिर हूँ। काविश में मनकेर। सोने चांदी की कीमतों ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। आलमी व मुकामी सतह पर एक ही रोज में सोने चांदी की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सोना $212 फी उंस महंगा होकर $5,500 फी उंस की नई बुलंद सतह को छूने लगा। मुकामी सराफा बाजार में फी तोला सोने की 21,200 रुपए की बड़ी छलांग। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 5,72,862 रुपए पर पहुंच गया। एक तोला चांदी भी पहली बार 12,150
175 रुपए की नई बुलंद सतह पर कायम है। सोने की बढ़ती हुई कीमत ने आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर कर दी है और शादियों के लिए सोना खरीदना मुश्किल तर हो गया। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए खातून खरीदार का कहना है कि मुझे मेरी अम्मी ने शादी पर काफी सोना दिया था, मगर अब मैं अपनी बेटी के लिए सिर्फ दुआएं ही दे सकती हूँ। वालिदैन बोले अब तो चांदी भी नहीं दे सकते। इस हुकूमत को तो गोली मारनी चाहिए। अब बच्चों को पढ़ाई पूरी करें कि घर को देखें। हम सोना तो खरीदने का तस्वुर ही नहीं कर सकते हम लोग, इतना महंगा सोना है, कुछ भी नहीं। दुआओं के सिवा हम क्या दे सकते हैं? ये हुकूमत किस काम की? नहीं ले सकते। अच्छा फ्रूट नहीं खिला सकते बच्चों को, तो सोने की तो दूर की बात है, अच्छा खिला नहीं सकते हैं। बिजली आती नहीं है, बिजली के बिल आते हैं, गैस आता नहीं है, गैस के बिल आते हैं। अजाब बन गया हमारे लिए, अजाब हो गया है, गरीबों के लिए अजाब हो गया। दुकानदार का कहना था कि अवाम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सोना खरीदने आते हैं, मगर सोने की कीमत रोज बरोज बढ़ रही है, जिससे वो खरीदने से कासिर रहते हैं। अब जब 2 लाख रुपए का रेट पूछ किया था, जब कमेटी जोड़ते थे, जब मार्केट हो जाती 4 लाख रुपए पे, तो बंदा कहाँ खड़ा हुआ? हर बंदा परेशानी का शिकार है इस वक्त। तो ये है कि थोड़ी गुजारिश है कि कुछ कोऑपरेट करें इन लोगों के साथ। सोने की बढ़ती कीमतें जहां शादियों पर मिलने वाले तोहफे पर असर अंदाज हुई हैं, वहीं रिवायती रसूमात पर भी असर डाला है। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टेट बैंक ने बैंकिंग डिपॉजिट्स की रिपोर्ट जारी कर दी। दिसंबर 2025 तक बैंकिंग डिपॉजिट्स में माहाना 5.8 और सालाना 23.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर तक ये रकम 37,431 अरब रुपए तक पहुंच गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। बैंकिंग डिपॉजिट ने रफ्तार पकड़ ली, 37,000 अरब से तजावज कर गए। मरकजी बैंक ने दिसंबर 2025 तक बैंकिंग डिपॉजिट की रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक बैंकिंग डिपॉजिट में माहाना 5.80% और सालाना 23.60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2025 तक बैंकिंग डिपॉजिट बढ़कर 37,431 अरब रुपए तक पहुंच गए, जबकि दिसंबर 2024 में यह रकम 30,283 अरब रुपए थी और नवंबर 2025 में 35,380 अरब रुपए। रिपोर्ट के मुताबिक माहाना बैंकिंग डिपॉजिट में 2,051 अरब रुपए और सालाना 7,148 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान बैंकों की सरमायाकारी एक साल में 30% से बढ़कर 37,910 अरब रुपए तक पहुंच गई। रिपोर्ट में बताया गया कि बैंकों के एडवांस का हजम दिसंबर 2025 तक 14,880 अरब रुपए रहा, जो एक साल में 7% कमी को जाहिर करता है। अशरफ खान, सिटी 20। पसंद की शादी करने वाले नौब्याहता जोड़े को जान का खतरा लाहक हो गया। मोहम्मद सिद्दीक और इकरा ने तहफ्फुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। मोहब्बत की शादी जान का खतरा बन गई। नौबेहते जोड़े ने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दे दी। कराची में पसंद की शादी करने वाले नौबेहते जोड़े को जान का खतरा लाहक हो गया, जिसके बायस उन्होंने तहफ्फुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। मोहम्मद सिद्दीक और इकरा ने अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 27 जनवरी को अपनी मर्जी से शादी करने के बाद उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बायस उनकी जिंदगी खतरे में है। मेरा नाम इकरा है। हमने पसंद की शादी करनी थी, इसलिए हम अदालत में आए। हमने निकाह किया है। अगर वो हमें ढूंढ भी लें तो अगर हमें वो कुछ करेंगी तो इस चीज़ का उन्हीं पर डिपेंड आएगा कि उन्होंने हमें कुछ किया। जी, घर वालों से खतरा है और मेरे कुछ कजन्स हैं, पापा वाले हैं, वो मुझे यकीनन ढूंढ रहे होंगे। मुझे उनसे खतरा है, अगर वो मुझे ढूंढ ले तो मुझे मार भी देंगे। नौबेहता जोड़े ने IG सिंध और दीगर हुक्काम से फौरी तहफ्फुज़ की अपील भी की है। मुमताज जमाली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट, आईनी बेंच, कंज्यूमर कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। हाई कोर्ट आईनी बेंच में नादरा की जानिब से फैमिली ट्री में गैर मुतालिका अफगान शहरी शामिल करने के मामले की समाअत। अदालत ने नादरा को 10 रोज में कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि गैर मुल्की पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने महमूदाबाद में गैर कानूनी तामीरात की समाअत की। अदालत ने SBCA को फौरी इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। 2 फरवरी तक रिपोर्ट तलब, तामीरात रोकने, कनेक्शन मुनक़ता करने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट ने 57 रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी पर समाअत की। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। मेयर कराची ने अदायगी की यकीन दहानी करवाई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों से रकम काटी जा रही है, वाजिबात के लिए परेशान है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने 5 लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत की। अदालत ने शाकिर खान की बाजियाबी पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।
सिंध हुकूमत से 26 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने साबका बीवी के शौहर को कत्ल करने वाले मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। मुकदमे में चश्मदीद गवाहान और इस्तिगासा के बयानात से कत्ल साबित हुआ। वाकया फरवरी 2024 को पेश आया और मुकदमा थाना PIB में दर्ज किया गया। सूबाई एंटी करप्शन अदालत ने इंटरबोर्ड के इम्तिहानी नताइज में मुबैना रद्दोबदल और जालसाजी का केस सुना दिया। साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और गवाहों को आइंदा समात पर तलब किया। समात 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। NED यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। खालिद मकबूल कहते हैं कि कराची तवील अरसे तक हुक्मरानों की तरजीहात में पीछे रहा। अक्सा शेख की रिपोर्ट। सिंध में भी लैपटॉप की तकसीम का आगाज़। NED यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म स्कीम के तहत तलबा व तालबात में लैपटॉप तकसीम की तकरीब मुनक़िद की गई। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब में कहना था कि ऐवानों में आम शहरियों की नुमाइंदगी वक्त की ज़रूरत है। कौमों की तरक्की का दारोमदार इल्म व हुनर पर ही होता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि कराची को वफाक के हवाले करने के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। हुक्मरानों की तरजीहात में कराची फार फ्लंग एरियाज़ में है, मैं लेकिन वज़ीर तालीम हूँ। लेकिन ये भी मैं बता दूँ आपको कि हुक्मरान पाकिस्तान में एक तबके का नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो कराची ने ये भी करके दिखाया है कि जो लोग हुक्मरानी का हक़ नहीं रखते थे उन्होंने अपना हक़ छीना और असम्बलियों में पहुँचे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी एडवोकेट का कहना था कि लैपटॉप तकसीम करने का सिलसिला 2011 में शहबाज शरीफ ने शुरू किया था। NED के तलबा दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। 2011 में अगर शहबाज शरीफ साहब ने एज PM इस चीज़ को इनिशिएट किया था तो उसके बाद उनके जाने के बाद ये रुक गया। 2013 में जब हुकूमत दोबारा आई तो PMLN की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस सिलसिले को दोबारा जारी किया। NED ने पाकिस्तान के सियासत में, पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी में, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया है और मैं उम्मीद रखता हूँ इसी तरह से सिलसिला आगे बढ़ेगा। कौमें ऐसे नहीं बढ़ती। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध के कोऑर्डिनेटर फहद शफीक ने बताया कि सिंध की जामियात में भी लैपटॉप्स तकसीम किए जाएंगे। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सा शेख, City 21।